Absolute extrema is our today's topic. So this has been taken from subject calculus. Main topic is application of derivatives and absolute extrema is subtopic. So in this lecture I'll be covering the extreme value theorem statement only, the critical numbers and critical points, how to find absolute extrema, and graphs of absolute extrema and questions based on the same. So first of all, we have the extreme value theorem, which states that if a function fx is continuous on a closed interval ab, then fx has both its extrema existing on the interval. So absolute extrema, first of all, to find the absolute extrema of a continuous function f on ab. So there are few steps. Step 1, compute derivative of fx, that is f dash x, and find all the critical numbers of f on AB. Critical numbers, who are also called stationary numbers of f on AB. So first of all, we'll understand what are critical numbers. Critical numbers can be defined as, let fx is defined at a particular point c. Suppose function की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड की जा सकती है, and at that particular point either the derivative of f is going to be 0 और डज नॉट एग्जिस्ट. पर्टिकुलरली उसी पॉइंट पे या तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो जा रही है या फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, दैट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट. देन दैट पर्टिकुलर नंबर c विल बी कॉल्ड अ क्रिटिकल नंबर ऑफ f. And by substituting the value of that point in the function, we'll be getting a coordinate point c, f of c. That point will be called critical point on the graph of f. So critical number is the point where derivative either is going to 0 or does not exist. We need to find critical numbers first. So this is how we can find critical numbers. फंक्शन के डेरिवेटिव में आप ज़ीरो रखेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव को, और वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो सभी के सभी क्या होंगे, क्रिटिकल नंबर. और आपने ये भी ध्यान देना है कि किन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव इन्फिनिटी जा रहा है. स्टेप 2 में आप फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, एक तो एंड पॉइंट्स पर जो कि a और b हैं इंटरवल के एंड पॉइंट्स, और सभी क्रिटिकल नंबर्स पर. जो क्रिटिकल नंबर्स हमने स्टेप 1 में फाइंड किए हैं उन सभी पर फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव स्टेप 3, in which we need to compare the values of f which we have found in step 2. Step 2 में आपको जो फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, उन सबको कंपेयर करेंगे, उनमें कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है. Accordingly, we'll say the largest value of f is the absolute maximum of f on AB, and the smallest value of f is the absolute minimum of f on AB. So this is how we find extremum of f on the interval. स्टूडेंट को हमेशा ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू देगा, इंटरवल का जो एंडिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. ऐसा नहीं होता है, हर केस अलग होता है. हो सकता है किसी केसेस में आपको इंटरवल के पॉइंट्स पे ही मैक्स मिन मिल जाए, पर सभी में ऐसा नहीं होता. कुछ मैक्स मिन हमको क्रिटिकल नंबर्स पे भी मिलते हैं. So these are the 3 steps which we need to consider to find absolute extrema. Next we need to study the graphs of absolute extrema, जिसमें वो सभी केसेस आ जाएंगे कि किस किस तरीके के केसेस हो सकते हैं absolute extrema के. So पहला ग्राफ आप देखेंगे इस तरीके से, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जो आपके ये पॉइंट्स आए हैं और इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया है, क्रिटिकल नंबर कोई अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरवल के ही पॉइंट्स पर आपको मैक्स मिन मिल रहा है. जो स्टार्टिंग नंबर है a इंटरवल का, उस पर मैक्सिमा मिल रहा है, और एंडिंग नंबर जो इंटरवल का है उस पर मिनिमा मिल रहा है. So this is the case when function is continuous with an extremum at each end point. End points पे ही आपको extremum मिल गए. सेकेंड केस में आप देखेंगे जो फंक्शन है उसमें हम्प्स है, तो ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है.
which are not the end points of the interval. So these are what? These are critical numbers. When f is continuous and neither extremum is at an end point, both the extremum are at critical numbers. You can clearly see starting और ending point पे आपको maximum नहीं मिल रहा है, बीच में कहीं मिल रहा है, and these will be called critical numbers. So in third case, suppose graph is this way, there is only one hump in the downward, so we are getting the maxima at the starting point and minima in the midway. So maxima we are getting at the point of the interval and minima we are getting at the critical number. So this is the case जब एक एक्सट्रीमा आपको इंटरवल के पॉइंट पे मिल रहा है और एक एक्सट्रीमा आपको क्रिटिकल नंबर पे मिल रहा है. So when f is continuous, one extremum at an end point and other extremum at critical number. Right, so these are the cases. और भी cases बनाए जा सकते हैं, बट ये आपको समझाने के लिए कि एक्सट्रीमम जो हैं ज़रूरी नहीं कि एंड पॉइंट्स पर ही हों. इन नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड f dash x going to be 0 and f dash x is going to be undefined or does not exist. What does that geometrically mean? f dash x का हमने geometrical meaning समझा था. f dash x का geometrical meaning क्या होता है? Is the slope of a tangent line of the curve, and when f dash x is 0, so that means slope of the tangent line is 0, और slope 0 होना means your tangent line is parallel to x axis. So that is why the graph exists like this. Tangent line is going to be parallel to x axis whenever f dash x is 0. So these are the point basically जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो है, वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. इनसे थोड़ा सा पहले फंक्शन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा और इनके थोड़ा सा बाद में भी पॉइंट्स पर वो बढ़ रहा या घट रहा होगा, बट इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. और एफ डैश एक्स अनडिफाइंड का केस समझेंगे. इसमें क्या होता है, या तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं रहा होगा, इसीलिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, या फिर फंक्शन में ब्रेक्स होंगे, जंप्स होंगे. सेकंड ये होता है कि योर टेंजेंट लाइन में बी वर्टिकल और देयर इज़ नो टेंजेंट लाइन फॉर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स. टेंजेंट लाइन आपकी वर्टिकल लाइन हो सकती है, इसीलिए फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड जा रहा है. और मे बी देयर आर शार्प कॉर्नर्स और कस्प और एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व विच वी कैन डिस्कस फर्दर लेटर ऑन. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सपोज योर ग्राफ इज़ लाइक दिस, देर इज़ अ पॉइंट, यू कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट ऑन इट. सो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो वो आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखाई देगी. या फिर इस तरीके का ग्राफ जो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और फिर इंक्रीज़ होता गया जैसे, और यहाँ ज़ीरो पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी वाई एक्सिस इटसेल्फ. सो दीज आर द केसेस व्हेन एफ डैश एक्स इज़ अनडिफाइंड. सो फॉर क्वेश्चन पार्ट, I am taking a question. Find the absolute extrema of the function defined by the equation fx is equals to x to the power 4 minus 2x square plus 3 on interval minus 1 and 2. Since fx is polynomial and every polynomial is continuous on closed interval, so by extreme value theorem it is clear we will be getting absolute maximum and absolute minimum on the interval. This is by extreme value theorem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आपको एक्सट्रीमम मिलेगा भी कि नहीं. ज़रूरी नहीं है हर बार मिले. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है देन वी कैन थिंक ऑफ एक्सट्रीमास. सो टू फाइंड एक्सट्रीमास वी विल बी फॉलोइंग द 3 स्टेप्स. स्टेप 1 जिसमें हम फंक्शन का पहले डेरिवेटिव्स निकालेंगे. एफ डैश एक्स विल बी 4x cube minus 4x. आफ्टर सिंप्लीफाइंग आप देखेंगे कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो कब जा रही है. फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होगी व्हेन x इज़ 0, 1 एंड -1. सो दीज विल बी क्रिटिकल नंबर्स.
Critical numbers are x is equals to 0, 1 and -1. In step 2 we will be finding the values at endpoints and values at critical numbers. फंक्शन की वैल्यूज़ आपको निकालनी है. फंक्शन में आप एंड पॉइंट्स पुट करेंगे पहले -1 और 2 और इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे. तो ये हमने एंड पॉइंट्स पर इनकी वैल्यू निकाल ली. नेक्स्ट आपको निकालनी है वैल्यूज़ एट क्रिटिकल नंबर्स. वन ऑफ द क्रिटिकल नंबर मैचेस विद द वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑल्सो. सो वो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. f(0) पर वैल्यू आ रही है 3 एंड f(1) पे वैल्यू आ रही है 2 और f(-1) पे वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू इज़ 2. सो स्टेप 3 में आप कंपैरिजन करेंगे कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है. आप देखेंगे 11 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड 2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ कमिंग एट 2 पॉइंट्स 1 एंड -1. सो मिनिमा इज़ एट 2 पॉइंट्स, मैक्सिमा इज़ एट 1 पॉइंट. तो स्टेप 3 में आप देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ f अक्कर्स एट 2. x इज इक्वल्स टू 2 पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है और f(2) की वैल्यू क्या है 11. बिल्कुल इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो आपको 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है -1 एंड 1 और f(-1) की वैल्यू है f(-1) एंड f(1) बोथ आर गिविंग वैल्यू 2. आप इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं. सपोज -1 और 1 पे दोनों पे वैल्यू 2 आ रही है जैसे यहाँ पे. तो इसको जब प्लॉट करेंगे आप और 0 पर जो है वो वैल्यू 3 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है y की वैल्यू 11 जो काफ़ी ऊपर आएगी. सो स्टार्टिंग पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं 0 पर 3. तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा और एकदम से शूट अप होगा 2 पर. 11 वैल्यू है 2 पर, सो वो 2 पर आपको 11 वैल्यू ये देगा. ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली आपको 2 की सीध में लिखनी है. दिस इज़ रफ स्केचिंग. सो एक जनरल लुक आपको ग्राफ की पता चलेगी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है. सो नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा व्हेन द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. एक केस हमने ऐसा डिस्कस करना है जैसे जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो भी एक क्रिटिकल नंबर होता है. तो स्टेप 1 में आप डेरिवेटिव निकालेंगे. फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ताकि डेरिवेटिव निकालने में आसानी हो. 10/3 x टू द पावर -1/3 -10/3 x टू द पावर 2/3. कॉमन ले लेंगे 10/3 x टू द पावर -1/3. दिस विल बी 1 - x. सो फॉर क्रिटिकल नंबर्स आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं. एक आपको सॉल्व करना होता है f(x) इज इक्वल टू 0. f(x) इज इक्वल टू 0 किन पॉइंट्स पे जा रहा है एंड ऑल्सो वी नीड टू लोकेट द प्लेसेस वेयर f(x) डज नॉट एग्जिस्ट. बाय लोकेटिंग द प्लेसेस वेयर f(x) डज नॉट एग्जिस्ट. तो f(x) की वैल्यू आप देखेंगे 0 किस पर जा रही है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 और x की पावर जो कि -1/3 है वो डिनोमिनेटर में जाने से 0 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है. सो 0 इज़ ऑल्सो द क्रिटिकल नंबर, 1 इज़ ऑल्सो द क्रिटिकल नंबर. देयर आर 2 क्रिटिकल नंबर्स वी हैव गॉट. सो इन स्टेप 2 वैल्यूज़ एट एंड पॉइंट्स एंड वैल्यूज़ एट क्रिटिकल नंबर्स. फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है. सबसे पहले हम एंड पॉइंट्स पे निकालेंगे -1 और 2. f(-1) विल बी आफ्टर सिंप्लीफाइंग 7 -1 का स्क्वायर हो गया. तो f(2) ये सिंप्लीफाई होके आएगी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 4 जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.58. इसका मैंने एक फार्मूला दे रखा है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं. क्रिटिकल नंबर्स पर वैल्यू
एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, फंक्शन में जब ज़ीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो ज़ीरो आएगा, एफ ऑफ वन विल बी थ्री। तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू इज़ सेवन एंड मिनिमम वैल्यू इज़ ज़ीरो. So this we will be comparing in step 3 and giving the answer. The absolute maximum of f is occurring at x is equal to -1 and the value at that point is 7. Absolute minimum of f is occurring at x is equals to 0 and value of function at that point is 0. Right? Hope it's clear. Thank you.